Good morning to respected principal sir, dear teachers and all my dear friends. Today is 2nd October 2021, the 152nd birthday of our beloved Bapuji Mahatma Gandhi. I am Rishita. And I am Saran Gowda of grade 10. Giving a running commentary on the Gandhi Jayanti program being organized here at Aryabhatta International Academy, Yadgir. Over to Saran Gowda. We offer a special welcome to Ms. Singh, the member of the managing committee of our school. Over to Rishita. As usual, the first item of the program is lighting of the lamp of knowledge. And today, we also garland the portrait of Mahatma Gandhi. Today happens to be the birthday of not only Mahatmaji or Bapuji, but also that of Lal Bahadur Shastri, who was our Prime Minister of India. And he passed away in an air crash while coming back after the Tashkent Declaration. A very simple, honest, and great politician, Lal Bahadur Shastri, earned a lot of respect and admiration of everyone. But since it's Gandhiji's birthday also, always all prominence normally goes to Gandhiji. But they are both equally great sons of our country. So we pay our Every program in the school begins with the invocation of Goddess Saraswati. The school choir will render Hey Sharadema. हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण हमें प्यार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ गुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी न समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे मन से हमारे मिटा दे अंधेरा हमको उजालों का परिवार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे
in the life of every Indian was 1948, when our beloved Bapuji was ruthlessly assassinated by an assassin, Nathuram Godse, while moving towards the Prarthana Ghar in Birla House, Delhi. Now we present before you the scene. It's really strange that a Christ should be crucified at every age for redemption of sins and emancipation and salvation of mankind. Gandhi's leadership in the freedom struggle of our country and his heartfelt desire of improving the lots of poor and downtrodden has struck a chord in the mind of every Indian. And that is the great spirit behind this celebration, which is on a public holiday of our country. That Christ reserved them. So did Gandhiji. We are taking you all to the Prarthana Ghar of Birla Mandir, Delhi, to attend a Sarvadharma Prarthana under Gandhiji's ethereal presence. Get into our flight of imagination. We start with the Muslim prayer. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Next,
song which was very close to Gandhiji's heart follows Vaishnava Janato Tene Kahi. वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोरे मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन दो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करेंगे रे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई The Sermon on the Mount. Jesus Christ advised to disciples, beginning with, "Blessed are the merciful," is the next prayer. In the name of Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Lastly, we have few sacred lines from Guru Granth Sahib, the most sacred text of Sikh religion. अर्जुनी से गम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक Sarvodharm Prarthana has become a part and parcel of all our school functions. Thanks to the inspiration we have from Gandhiji. Now, Shashikala of grade 7 wants to try her eloquence in Hindi. And now she is here to deliver a speech on Gandhi's relevance to the modern world. Shashikala, please. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। क्या आप लोग जानते हैं गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इस दिन संपूर्ण राष्ट्र में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है।
गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राष्ट्रपिता का नाम दिया गया है। उनके द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई प्रकार के संघर्ष किए गए हैं। सत्य और अहिंसा शब्द का उपयोग एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस दिन को संपूर्ण विश्व भर गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इतने महान नेता होने के बावजूद गांधी जी खादी के कपड़े पहनना पसंद करते थे। गांधी जी की देशभक्ति और संघर्ष के कारण ही भारतवर्ष को आज़ादी मिली है। गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत महान कार्य किया है। मैं उनकी एक महान बात साझा करना चाहूँगी। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो। इतना बताकर मैं अपनी छोटी सी भाषण को समाप्त करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। A speech on Gandhiji's life and message. Gandhi Ek Yatra, incorporating two of his famous prayer songs, comes the next. करमचंद गांधी। पता, सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद। पेशा, किसान बुनकर। उम्र 53 साल। ना खड़क ना ढाल, फिर भी पूरा देश आपके साथ। बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी असंभव बना दिया। हम नई पीढ़ी के लोग ये समझना चाहते हैं कि कैसे आपने इस देश को जगा दिया। मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी, चलो ना नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। मगर वो काम में बहुत व्यस्त थे। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो पिताजी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊं? ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, नाटक खत्म होते ही सीधा घर आ जाना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। इस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वे सत्य के खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी। उन्होंने सत्य के लिए अपना परिवार और राज्य दांव पे लगा दिया था। यह नाटक बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन जीना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं सिर्फ सत्य के राह पे चलूंगा। मोहन, ये इतना आसान नहीं है। चलो देखते हैं। और उस दिन से मोहन ने सत्यमय जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सत्य के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने
उसे जीवन के अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल बनाया, जिसे देखकर सारा संसार चकित रह गया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शुद्र समझा जाता था तथा हीनता से देखा जाता था और उन्हें अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे और बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कोच सिर्फ गोरों के लिए है। तुम यहाँ से निकलो, वरना मुझे स्टेशन मास्टर को कंप्लेन करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को बाहर निकालो और उसको तीसरे दर्जे में डालो। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया गया। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। तुम्हारी माँ ठीक है, पर वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं, ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिलवाएंगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य सारे The cultural program now comes to an end here. But